ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। आओ मन बिरतियां करो इकागर। पावन इतिहासिक विचार आरंभ करने तो पहला जितने भी शरीर गुरु हजूरी विच बैठे हो प्रेम अते सत्कार नाल नासरो मंसूर एज दी मंजूर हक रा गंजूर जुमला फैज नूर हक हक आगाह शाहे शहन शाह हक हक अंदेश बादशाह दरवेश खाल सोबे कीना हक हक आईना कादरे हरकार बेकशारा यार दुष्ट दमन आपे गुर चेला सरबंस दामी अमृत के दाते कलगीधर पिता महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज वालों बख्शिश की हुई पावन गुरु की फतेह चढ़ती कला विच बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी इस फतेह वास्ते गुरु नूं तत्तियां तवियां ते बैठना पिया ते गुरु बैठिया। इस फतेह नूं लैण लई चांदनी चौक विच सीस देना पिया गुरु ने दिता। इस फतेह वास्ते जे चारे लाल वारने पे गुरु ने वारे तां ये फतेह चौधी विच आई है। सो संकोच नहीं फिर देओ असीस आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिर दीजै कान न कीजै सिर दीजै कान न कीजै सिर दीजै सिर दीजै कान न कीजै सिर दीजै कान न कीजै सिर दीजै इत मार्ग पैर तरी जै इत मार्ग पैर तरी जै इत मार्ग सिर दीजै कान न कीजै सिर दीजै कान न कीजै सिर दीजै धन धन बाबा अजीत सिंह जी धन धन बाबा अजीत सिंह जी धन धन बाबा धन धन बाबा जुझार सिंह जी धन धन बाबा जुझार सिंह जी धन धन बाबा धन बाबा जोरावर सिंह जी धन बाबा जोरावर सिंह जी धन बाबा धन धन बाबा फतेह सिंह जी धन धन बाबा फतेह सिंह जी धन धन बाबा धन धन माता गुजर कौर जी धन धन माता गुजर कौर जी धन धन माता धन गुर तेग बहादुर साहिब धन गुर तेग बहादुर साहिब धन गुर
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹੀ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਦਾ ਜਗਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਸਦਾ ਜਗਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜੇ, ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪੈ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਥ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਦਿਆਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਫਲ ਤੋੜ ਦਿਆਂ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬੂਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਦਾਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਦਾ ਚੌਕ ਆਇਆ, ਸਰਹੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਕਦੇ ਚਮਕੌਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ, ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਸਿੰਘ ਫੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਗਰਜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਗਿੱਦੜ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰਜਿਆ
कहते ये सिंह गर्ज सी, कदे काजियां नूं कहा, कदे राजे सामने आए ते गुरु नानक बोलिया राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते। बाबे नूं गिरफ्तार किया बाबर ने। ये बाबर किया दी ते बाबे किया दी जंग जे गुरमुखो, ऐते बाबर के हार जाणगे ते बाबे किया दे निशान फतेहगढ़ साहिब दे विच झुलणगे। जिस वेले बाबर आया, बाबर ने गुरु नानक बाबे दे सामने शराब दा प्याला कीता। कहण लगे बाबा ये शक, महाराज कहण लगे बाबर ये की? कहते ये शराब दा प्याला है, अगर तू पी लवे तेरी 2-4 घंटे नशा नहीं हो उतरना। गुरु नानक बाबे ने कहा मैं पीती है नाम दी, तेरा 2-4 घंटे नहीं उतरना। जदों तक जीवन रहेगा नाम का नशा कदे नहीं जे उतरेगा। उन्हें कहा ये शराब, ते मैं अज कहना चाहांगा गुरमुखो, था यही आलम कि गुरु नानक ने कह दिया इसका पीना भी खता, इसका पिलाना भी खता। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ नहीं जी मैं तो पीता नहीं जी, पर भराउणे आ गए ने जी, हुण की करिए जी, इन्हां नूं देनी पैंदी है, ये करना पैंदा। नहीं, इसका पीना भी खता, इसका पिलाना भी खता। पीण वालियां नूं भी सजा है ते पिलाण वालियां नूं भी सजा है। गुरु नानक ने कह दिता मैं ते इको पीना वां, वो शराब दा पता है नाम की है? सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। नाम रस पीवै, नाम रस पीवै, नाम रस नाम रस पीवै, नाम रस पीवै, नाम रस पीवै, नाम रस पीवै। जिस वेले बाबर इस हिंदुस्तान की धरती ते आया ते ऐमनाबाद की धरती ते उस बाबर ने चारे पासे बहु बेटियां की इज्जत लुटी ते जेड़े लोग सन उन्होंने कतल करके रख दिता। मैं कहना वा गुरमुखो, बड़े फकीर होणगे पर गुरु नानक बाबे ने आवाज मारी मर्दानिया छेड़ रबाब, ये आप हल्का कुत्ता बन के आया है बाबर, इस दे खिलाफ आपा बोलना है। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया। मैं एक गल कहनी चाहांगा कि राजे जम बन के उदों भी चढ़े, उदों भी बाबा नानक बोलिया जे अज भी राजे जम बन के खड़े ने ते उन्हां अगे भी केवल गुरु नानक दे सिख अड़ के बैठे ने। मैं कहना वा जंतर मंतर ते धरने ते बथेरे लोगों ने दिते होणगे गुरमुखो। कदे कोई छत्तीसगढ़ तो सिख आ गए 20-50-100, कदे कोई कितों किसान आ गए, कदे कोई कितों आ गए। जालिमां ने सोचिया, सरकारां ने सोचिया बस ये इन्ने कु जोगे ने, नाल बंगला साहिब लंगर छक लैंदे ने, नाल 4 झंडे हत्थां ते खड़ जांदे ने ते जालिम सरकार कदे भी उन्हें सिर ते जू नहीं रहेगी, भावें जेड़ी मर्जी सरकार नहीं होवे। पर ऐतकी इन्हां नूं ये नहीं पता कि तुसी मत्था गुरु के खालसे नाल लगा लिया जे। ये अपनी परवाह दा की करनगे, इन्हां ते अपने बच्चियां नूं टोटे टोटे करके गलां विच हार पवा लिया। ये ते मीर मन्नू इन्हां नूं वड्डे, ये तां भी दूने चौने होंदे ने। सरकारे तू जितना मर्जी जोर ला ले, बाकी डिग जान ते डिग जान, गुरु का खालसा ना डिगया ते ना अगे डिगेगा।
जिस वेले बाबर आया ते गुरु नानक बाबे दे सामने मुकाबला किया ते बचन कहे कि ऐ बाबर मैनू इउं ना समझी बाकी फकीरां वांग भाई मरदाना बोलिया गुरु नानक बोलिया ते उस वेले बाबर गुरु दे अगे मत्था टेकदा है। अगले बार गुरु अंगद साहिब जी गुरु नानक दी दूजी जोत ते दूजे बन्नेओ उस बाबर दा पुत्र हिमायू आया। खडूर साहिब महाराज बैठे सन, एने आके नमस्कार की, गुरु ने पिठ कर ली। दोबारा एने तलवार कढ़ी ते गुरु अंगद साहिब ते चलान लग्या। गुरु अंगद साहिब कहने लगे ऐ हिमायू जिथे तलवार चलानी सी उथों ते डर के भज के आ गए, शेर शाह सूरी कोलों हार खा के आ गए ते साडे नाल जंग करनी चाहुंदा, तैनूं शर्म चाहिदी है। गुरु नानक बाबा जी नहीं झुके। गुरु अंगद साहिब ने हिंदुस्तान के राजे नूं कोरा जवाब दिता। कदे इत्थे अकबर आया, अकबर ने कहा मैं दर्शन करने, बाबे ने कहा पहला पंगत में जाके लंगर छक, क्योंकि अकबर होवे बाबर होवे हिमायू होवे गुरु नानक दे घर अंदर किसी का बड़ा मान नहीं, मान केवल उदा होवेगा जेड़ा जपेगा सतनाम श्री वाहिगुरु। कदे ऐते जहांगीर आया ते धन गुरु अर्जन साहिब महाराज नूं गिरफ्तारी का हुक्म दिता। गुरु अर्जन साहिब महाराज लाहौर विच गए, लाहौर विच उन्हां तवियां गरम कीतियां। गुरु बाबे दे सिर उपर उन्होंने रेत की बौछार की ते जिस वेले साईं मियां मीर आए शब्द उन्होंने ये सन बाबा एक ही भाना बरतान लगे हो। गुरु अर्जुन साहिब ने कहा सी साईं जी जितना बीज निरोया नवा पावांगे ओनी फसल चंगी होएगी। कहते महाराज मैं समझिया नहीं। साहिब कहने लगे अज मैं शहीदी दा बीज पा के चलिया वा, समा अगे आएगा शहीदियां होंदियां रहणगियां। कहते इहदे उत्ते कदे फुल आणगे जो चांदनी चौक में टुटणगे, कदे निके निके बीज लगणगे जेड़े चमकौर में टुटणगे, कदे ऐदे फल आणगे वो फल सरहद दियां दीवारां विच चिणे जाणगे। पर एक गल याद रखना साईं जी कि इस दरख्त ने कदे नहीं ये सुकना, जिस वेले ये सुकण ते आएगा मेरे सिख अपना खून पाके इहनूं फिर हरिया कर देंगे। देखो शब्द गुना बड़ा प्यारा गया। गुरु अर्जुन साहिब ने शब्द कहे कि कुछ ही दिना अंदर फुल इसदे खिलर जाणगे संसार अंदर। जिहड़ा मैं शहीदी का बूटा लाया है एवें नहीं ललकारे मार के नियां भी शहीद हो गए, उन्हां दियां रगां दे अंदर तत्ती तवी ते पैण वाले दा खून। गुरसिखो ये अंदर जेड़ा जज्बा गुरु साडे पा के गया है ना, अज समस्त संसार दे अंदर खालसे दा बोलबाला हो रहा है। वो केवल इस करके हो रहा है कि सारिया कौमां सिखाउंदियां ने जीना किवें है। कलगी वाला सिखा के गया जे मरना पै जे ते मरना किवें है। गुरमुखो जिस वेले गुरु अर्जुन साहिब ने शब्द कहे कि कुछ ही दिना अंदर फुल इसदे खिलर जाणगे संसार अंदर, कोई चांदनी चौक नूं भाग लासी चढ़ के देश दे दर्द प्यार अंदर। मैं ऊटू चमकौर दी जू सारी जदों टुटे दो फुल बाहर अंदर। कोई अध खिड़े तोड़ टहनियां तो चिड़ देवेगा सरहद दी दीवार अंदर। पर एक गल जान लेना कि बनी रहेगी सदा बाहर इसते, लागे खिजाने ऐदे टुकड़ा नहीं, लगी ओर ते ऐदे सुपना नहीं, क्योंकि खून शहीदा दा मुकड़ा नहीं। जेड़ा खून शहीदा का वो मुकेगा नहीं। ते गुरु अर्जुन साहिब ने जहांगीर नूं सामने करके कहा सी, कहते अज तू मैनू दबा रहे हैं, ये ना समझी मैं दब गया वा। मेरी आवाज
ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਬੰਨਿਓ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦਬਾ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਨ कि मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। फशीलो आहन आतशाह अत बुलंद सही, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों, मेरे हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। महाराज ने किया मेरा पुत्र जंग करेगा। महाराज गुरु अर्जुन साहिब शहादत का जाप पीते ने, गुरु हरगोबिंद साहिब जी बैठते ने, उन्हें अकाल का तखत बनवाया। जिस वेले तखत बनवा रहे सन, गुरु हरगोबिंद साहिब ने सिख भेजे दिल्ली, कहते दिल्ली का लाल किले का तखत वेख के आओ एडा उच्चा। उन्हें आके दसिया महाराज एडा उच्चा। साहिब कहन लगे सभा तो हथ होर उच्चा कर दो अकाल तखत। उन्हें कहा दिल्ली का तखत एडा उच्चा, कलगी वाले का ए धन धन दाता जी कहन लगे एडा उच्चा कर दो सवा दो हथ होर उच्चा। उन्हें पूछा सिखा ने महाराज क्यों। साहिब जी कहन लगे दिल्ली के तखत जे उलटन गए ते उन्हां दे उत्ते कदे कबूतर बोलणगे, पर ये अकाल का तखत है जेड़ा ऐदे नाल मत्था लाएगा अज भी मिटेगा कल भी मिटेगा, ते इस अकाल दे तखत ते निशान सदा वास्ते झुलते रहने। अकाल का तखत मैं कहना ऐसे अबदाली आया, जे उन्हें हमला किया ते उनकी मौत हुई। जे जहान खान आया उन्हें सरोवर पूरिया, अकाल का तखत ढाया ते उदी मौत हुई। ऐसे इंदिरा वर्गी आई ते उदी मौत हुई। मैं कहना वा अकाल का तखत है, जे अकाल कदे नहीं मिटदा ते अकाल का तखत भी कदे नहीं जे मिटेगा। गुरमुखो गुरु बाबा जी ने 4 जंगा लड़ियां, चारे दिया चारे बाबे ने फतेह कीतियां, ते परत के गुरु तेग बहादुर पिता महाराज जी आए, ते जिस वेले सतगुरु महाराज जी ने वेखिया आनंदपुर साहिब की धरती को खरीदिया। पहला नाम सी माखोवाल, बाद विच नाम रखिया जग नानकी। मैं कहना गुरमुखो एवें नहीं कोई शहीद हो जाता, अंतर आत्मे एदा बल चाहिदा है जेड़ा किसी की तलवार दे वार नूं चल सके। एवें मरण होते हजारां बंदे एक्सीडेंटां विच मरदे पए ने, हजारां बंदे आत्म हत्या करते पए ने, पर होवेगा कोई गुरु तेग बहादुर वर्गा। आए सर कश्मीर के पंडित, उन्हें आके बेनती की है गुरु तेग बहादुर साहिब साडा धर्म ते अज नंगा हो रहा है। ये औरंगजेब सवा सवा मन जनेऊ ला के ता रोटी खा रहा है। महाराज असी बड़िया टलियां खड़का लईयां। मैं कहना जेड़े हुक्मरान आज हुक्म दे के कह रहे हैं सिख खालिस्तानी सिख ए सिख ओ, मैं एक बेनती करनी चाहांगा। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान पंजाब वल वेख रहा है। जिस दिन आप कश्मीर के पंडित आए सन उस दिन भी पंजाब वल वेखिया सी दाता तेरे तो बिना बचाने वाला कोई नहीं जे। जदों औखा वेल आउंदा है उदों पंजाब वल वेखदे ने, उदों खालसे वल वेखदे ने। ते मैं कहना वा कश्मीर के पंडित आए, उन्हां दियां बहु बेटियां आईयां, धीआं आईयां ते मत्था टेकिया दाता रोए कुरलाए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उम्र केवल 9 साल की, 9 साल की उम्र ते पिता नूं कहा दाता ये रोंदे पए ने, इत्थे तां आके सब हसदे ने। बाबा जी कहन लगे बेटा इन्हां दा धर्म खतरे विच, कहते कौन बचा सकता है। हुण इत्थे बड़ी बरीकी दी गल जे, मरण नूं ते एक बंदा कोई भी मर जे, कहते नहीं इन्हां दा धर्म वो बचा सकता है जिसने कदे पराया रूप न तकिया होवे, जिसने अठे पैर गुरु गुरु जपिया होवे, जिसने आसा मनसा उस्तत निंदिया हरक सोग, जिस
जिसने एक करके जानिया होवे ऐसा कोई महाबली होवे ते इन्हां दे धर्म वास्ते शहीदी देवे ते इन्हां दा धर्म बचेगा। कलगीवाला बोलिया दाता फिर तेरे तो बड़ा महाबली कौन? जिस वेले ये सुनिया अपनी गल नाल लाया ते हुण गुरु तेग बहादुर जो बोलिया कमाल दा बोलिया। सुनियो गुरु तेग बहादुर बाबा जी की बोले? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਧੀਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਓ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤ ਬਚਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਜਾਓ ਧੀਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਓ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤ ਬਚਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਆਪਣਾ ਪਾਗਾ ਮੈਂ। ਪਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਆਪਣਾ ताही भारत वर्ष का बाग अज फल रहा है। अज भी हिंदू मंदिरों के दीवियां विच लहू गुरु तेग बहादुर का बल रहा है। अज भी गुरु तेग बहादुर का लहू बल रहा है कि मंदिर रोशन हो रहे ने। मानो गुरु कह रहे हैं सजना जे तू अज भी बेनती करन आवे ते अज भी तेरे वास्ते गुरु का खालसा अज भी खड़िया हुआ है। गुरु तेग बहादुर बाबा जी ने आप शहीदी दी। जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह पिता महाराज गुरु बने महाराज ने सब तो पहला रणजीत नगाड़ा बनवाया और जिस वेले उस रणजीत नगाड़े नू उन्हां पहाड़ियां दे अंदर बनवाया ते जिहड़े पहाड़ी राजे सन उन्हां पहाड़ी राजियां ने वेखिया कि किहदा नगाड़ा कप गए ते उन्हां दा एक भीम चंद दा एक वजीर सी उहदा नाम सी परशुराम। उन्हें बड़ा प्यारा वचन कहा कहंदे वजीर तू ये पुछना भी किहदा नगाड़ा ते भीम चंद मैं तैनूं दसना चाहना वा जिसदे दादे ने तुहाडे दादियां नूं ग्वालियर के किले दे विचों कढ़ाया सी। ये ओदे पोतरे गुरु गोबिंद राय दा नगाड़ा है। मैं कहना गुरु किसे कौम नूं गुलाम ना बनाए, गुरु किसे कौम नूं अकृत घटना बनाए। जिन्हां राजियां नूं गुरु बाबा जी ने कढ़िया उन्हां दे पोतरियां ने गुरु के नाल जंगा कीतियां। पर गुरमुखो सतगुर सबना दा भला बनाएंदा तिसदा बुरा क्यों होए। बाबा ते सारियां दा भला चाहुंदा है। बाबा ते एक पानी वांग है जेड़ा मर्जी पी लवे कोई जात नहीं पुछनी पात नहीं पुछनी। जेड़ा पिएगा अंदर नूं ठंड देगा अंदर दी प्यास मिटेगी। गुरु घर विच हिंदू वीर मुसलमान सिख मोदी जैनी जेड़ा मर्जी आ जाए जिस वेले गुरु बाबा जी हाथ रखणगे ओदियां पुठियां लकीरां नूं गुरु बाबा सीधियां कर देता है। गुरमुखो महाराज जी उस वेले रणजीत नगाड़ा बजवाते ने। महाराज जी ने जिस दिन भंगाणी का पहला युद्ध लड़िया पहला युद्ध भंगाणी का जितया ते कलगीवाला बोलिया भई जीत मेरी कृपा काल केरी। उन्हें कहा मेरी जित भई पर यह जित हुई है अकाल पुरख की कृपा नाल। जिस वेले शाम का दीवान सजिया सिख आया आनंदपुर साहिब तो कहता है दाता आप जी दे घर एक पुत्र बख्शिया है बाबे नानक ने। महाराज ने कहा असी पहली जंग जीती है ते साडे घर पुत्र आया है उसका नाम असी अजीत सिंह रखांगे। कहते मौत भी उन्होंने कदे जित नहीं सकेगी। जे मौत जितन का जतन करेगी मेरा सिख टुकड़े टुकड़े तो हो जाएगा पर मेरे पुत्र को कदे मौत भी नहीं जित सकेगी। गुरमुखो महाराज के घर बड़ा पुत्र बाबा अजीत सिंह उस दिन होए ने जिस दिन पहला जंग बाबे ने जितया। तकरीबन 12 जंगा लड़ लिया। जालमां नूं लग्या कि कलगीवाले नूं चुकाना साडे बस दी खेड़ कोई नहीं। हवा चले रुख पुट्टे जाते ने इमारतां ढह जांदियां ने पर सच जानियो कदे पर्वत भी हिले ने
पर्वत कदे नहीं हिलते जितनियां मर्जी हवावां चलदियां रहन। कलगी वाला पर्वत वांगू खड़िया सी। उन्हां बड़े जतन कीते पर बाबे दी एक बार भी वो हार नहीं कर सके। उस तो बाद उन्होंने आनंदपुर साहिब के किले नूं घेरा पाया। चारे पुत्र हो चुके सन कलगियां वाले दे ते उन्हां की कीता कि घेरा पा लिया। जिस वेले उन्हां घेरा पाया 1704 दे अंदर उन्हां सोचिया 1-2 महीने विच राशन पानी मुक जाएगा, ये सारे बाहर नूं आणगे, असीं इन्हां नूं गिरफ्तार करांगे। पर उन्होंने ये नहीं सी पता कि खालसा ते रोज पढ़दा है केतियां दूप भूख सदमार ए पेदात तेरी दातार। खालसा ते रोज कहता है जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। जे भुख दे तां ही राजा, दुख विच सूख मनाई। कलगी वाला झुकिया नहीं। 7 महीने हो गए ने, वो कलगी वाले नूं बाहर ही नहीं जे कढ सके। अंदर सिखा ने शहादत के जाम पीते, भुखे रहे, हाथी भी मर गया, घोड़े भी अनेका मर गए। गुरु बाबा जी ने आप पत्तियां दियां छिल्ला खा खा के गुजारा किया। पर महाराज ने कहा जालमा अगे झुकना कोई नहीं। ते उस वेले उन्हें सोचा भी ये झुकणगे नहीं, इन्हां दे अगे चाल खेडी जाए। जेड़े पहाड़ी राजे सन उन्हें कहा गऊ साडी माता है। ते उन्होंने की कीता आटे दियां गऊआं बना के अंदर भेजियां ते नाल कसम खाधी कि सतगुरु तुहानू कुछ नहीं कवांगे, आनंदपुर दा किला खाली कर दिओ। जेड़े मुसलमान हाकम सन उन्होंने कुरान शरीफ भेजिया, नाल कसमां खादियां महाराज कुछ नहीं कवांगे, किला खाली कर दिओ। सिख कह लगे सतगुरु किला खाली कर दईए। महाराज ने कहा इन्हां दियां कसमां ते भरोसा ना करो, सतगुरु ये कहते पे ने। महाराज ने पता की कीता, भाड़ा वरताया। एक महाराज ने कहा 4 गड्ढे तैयार करो, उन्होंने विच मरे हुए पशुओं के हड्ड पा दिते, टुटे छितर पाटे कपड़े पा दिते, टुटे भांडे पा दिते, उपरों की रेशमी वस्त्र लगा दिता। 4 गड्ढे जिवें आनंदपुर तो बाहर कड्डे। जालिमा ने सोचा कि गुरु का खजाना जा रहा है, वाह उठाई करके पै गए। महाराज ने दिखाया आनंदपुर के किले विचों अजे तक टुटे छितर गए ने, इन्होंने ता भी हमला कर दिता। जे तुहाडियां जवानियां बाहर जाणगियां ये तुहाडे नाल लड़नगे। पर सिखा ने कहा महाराज हुण होर कोई चारा नहीं, कृपा करो, ये कहते पे ने आपां भरोसा करिए। महाराज ने कहा फिर कोई गल नहीं, जो करतार रूप आवे। महाराज ने कहा कल शाम नूं असीं ये किला खाली कर देंगे। गुरमुखो जिस घर नूं आप बनाया होवे उन्होंने खाली करना केड़ा औखा होता है। आनंदपुर का पूरा शहर वसाया गुरु तेग बहादुर साहिब ने, आप कलगियां वाले ने इत्थे आनंद माणिया। अगला दिन चढ़िया, गुरु अते गुरु के सिखा ने तैयारियां कीतियां। शाम का वेल होया, सोदा रहराज का पाठ किया गया। थोड़ी जी बरसात आ रही है, बूंदाबांदी चल रही है ते अत दी ठंड है। अज कलगी वाला नितनेम करके अरदास करके कड़ा प्रसाद छके ते जयकारा गजा के जिवें आनंदपुर साहिब तो निकले ने, अगे गुरु के प्यारे ने 5 प्यारियां विचों। उन्हां दे पिछे माता गुजरी छोटे साहिबजादे ने, नाल सिख ने। उन्हां तो पिछे गुरु के महल ने, नाल भाई मनी सिंह दा जत्था है। उन्हां तो पिछे कलगी वाला 2 बड़े साहिबजादे ते 5 प्यारियां विचों भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह नाल ने। ते सब तो पिछे गुरु बाबे ने अपने बड़े पुत्र नूं रखिया, सब तो पिछे। ते किसी ने विचों आवाज की दाता पुत्र सब तो पिछे। महाराज ने कहा नहीं पुत्र पिछे नहीं रखिया, पुत्र मैं सब तो अगे रखिया है। मैनू पता है हमला पिछों होवेगा, ता मैं अपना पुत्र पिछे रखिया। वो कदे कोई ये कह
देवे गुरु अपने पुत्र बचा के लै गया ते बेगाने पुत्र शहीद करा देते, मैं अपने सिख बचा के लैके जावांगा ते पुत्रा दे टुकड़े करावांगा। जिवें महाराज जी बाहर आए ने, ये पूरा काफिला बाहर आया है, आनंदपुर साहिब दियां पहाड़ियां विचों बाहर निकले ने ते पिछों जालमां ने हमला कर दिता। बाबा उदय सिंह दा 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था, बाबा अजीत सिंह दा 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था। महाराज ने कहा अजीत बेटा पिछे रखवाली करना तुहाडा फर्ज है, असी अगे चलदे हां, तुसी जालमां तो पिछों खालसे की रखवाली करनी तुहाडा धर्म है। उन्हां आग्या लई सच्चे पातशाह आप विच वरतियो, क्योंकि तुसी ते 1.25 लाख नाल एक खालसे नूं लड़ाया है, मेर भरिया हथ रखियो। पिछे बाबा अजीत सिंह जंग पै करदे ने, अगे सतगुरु महाराज निकले ने, सरसा नदी का किनारा आया है। जिवें सरसा नदी का किनारा आया ते उस वेले तकरीबन 2:30 बजे का समा अमृत वेले का हो गया। ते महाराज ने कहा दया सिंह जी अमृत वेला हो गया है ते आपां इत्थे दीवान सजाने ने। सतगुरु पिछों जालम आ रहा है, अगों दी सरसा नागण एडा पानी एडा उच्चियां छालां मार रहा है, उपरों दी बरसात पै रही है। कलगी वाले बोले नितनेम साडी ताकत जे, जिस दिन तुसी नितनेम छड्ड दिओगे जालम तुहानू जिथे मर्जी मार के सुआ कर देणगे, तुसी नितनेम ना छड्डिओ, गुरु नानक तुहाडी बात कदे नहीं जे छड्डेगा। गुरमुखो महाराज ने उथे नितनेम कीता, महाराज ने आसा की वार का कीर्तन कीता। अज सानू कंबलां दे विच भी नितनेम भुलिया होया है। कलगी वालिया तू जान ते खेव के भी नितनेम कीता। अल्लाह यार था जो की कहता है था सर पे वक्त आ गया आसा की वार का, साजो सुरों के बिंब के चढ़ाओ उतार का, मनसा ता कलगी धर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो भजन कर ले किरतगार का। जपजी का जाप उस घड़ी पढ़ना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। जिहड़ा अंदरों पानी पड़ेगा कोई कौम वास्ते कदे शहादत देगा। सच्चे पातशाह महाराज जी जंग जेड़ी पार कीती सरसा, अनेका सिख विच रुड़ गए, गुरु के ग्रंथ अनेका विच रुड़ गए सरसा दे। सरसा पार कीती, इस सरसा ने गुरु के परिवार दे 3 हिस्से कर दिते। पहला हिस्सा छोटे साहिबजादे मां गुजरी पिंड खेड़ी वाले पासे नूं तुर पए। दूजा हिस्सा गुरु बाबा जी दे महल भाई मनी सिंह ये दिल्ली वाले पासे नूं तुर पए। ते तीजा हिस्सा गुरु के 5 प्यारे, गुरु के 2 साहिबजादे अते अज कलगियां वाला अपने सिखा चालियां नूं छाती नाल लगा के रोपड़ वाले पासे भी जा रहे हैं। गुरमुखो सतगुरु जी दे नाल कुछ जंगा होईयां, जिहड़े गुज्जर ते रंगड़ लोग ने इन्हां ने जंगा कीतियां। महाराज जी उत्तों दी लंघ के जिवें रोपड़ पहुंचे, ऐते महाराज जी नूं 2 भरा मिले। एक दा नाम सी बुधी चंद रावत, दूजे दा नाम सी भाई गरीबू। ये दोवें आए महाराज जी की सेवा विच, बदाम शुआरियां वाला दुध गर्म कराया कढ़ाया विच इन्हां ने छकाया गुरु के सिंघां नूं, कलगी वाले नूं, 5 प्यारियां नूं, 2 साहिबजादियां नूं दुध दा प्रसाद छकाया ते बेनती कीती दाता साडियां गुलामी दियां जंजीरां कट्टण वास्ते तो अपना आनंदपुर छड्ड दिता। सच्चे पातशाह साडे नहीं कोई हुक्म। कलगी वाले ने कहा असी ओट लैके जंग करांगे, जालम साडे पिछे है। महाराज जी ने जदों कहा कहते दाता तेरी बख्शी होई कच्ची चमकौर दी गड़ी साडे कोल आ, आप कृपा करो ते उस विच आप वसेबा करो। छोटे भरा ने बुलाया बड़े नूं, कहते भरा ये की करन लग्या है? जे गुरु बाबा जी उत्थे रहणगे ते नाल पिछों हुकूमत आएगी, ते हुकूमत आएगी ते नाल
साडी कच्ची गड़ी का कख नहीं जे रहना मलिया भेंट कर देंगे। बड़ा भरा बुद्धि चंद रावत कहन लगा, भरा साडी गड़ी उदों तक कच्ची जदों तक असी रहे, हुण ये पक्का उत्थे जान लग्या है। मैं तैनूं दस दिया, चमकोर विच बाकी मकान ते ढह जाणगे, पर तेरी कच्ची गड़ी चमकोर नूं लोक सदा मथे टेकिया करनगे। सच्चे पातशाह महाराज टुरे ने रोपड़ की धरती तो अपने सिंगां नूं लै के ते जिस वेले महाराज ने चमकोर विच प्रवेश किया ना, उस वेले सतगुरु ने खंजर कढ़िया। खंजर कढ़ के कच्ची गड़ी चमकोर दिया दीवार नूं खुरचिया। खुरच के महाराज ने उहदी मट्टी अपने हाथ विच रखी। महाराज ने उस मट्टी नूं मसल के फूक मार के उड़ा दिता। भाई दया सिंह कहन लगे, दाता ये की माजरा है? साहिब कहन लगे, ए दया सिंह, मैं अपने दोवें पुत्र चमकोर वास्ते पाले हैं। मैं अजीत ते जुझार नूं चमकोर वास्ते पालिया है। ते एक गल तैनूं दस दिया, इस चमकोर दी गड़ी दे अगे वड्डे वड्डे किले ढह जाणगे, पर इस चमकोर नूं कोई चुगा नहीं सकेगा। बाबे ने कहा, जिथे मैं आना सी मैं चमकोर विच आ गया वा। बाबे ने कहा, जिथों मैं कल लुट के जाना है, ये उड़ियो चमकोर है जिथे कल मैं अपने बच्चियां नूं कटाना है। बाबा बोलिया, दया सिंह, जिस खित्ते में हम कहते थे आना, ये वही है। कल जहां बच्चों को कटाना, ये वही है। कल जहां से लुट के है जाना, ये वही है। मिट्टी कह देती है ठिकाना, ये वही है। सच्चे पातशाह अंदर आए। जो प्रसाद पानी उन्हां कोल सी रुखा विसा, वो अज खालसे ने छकिया। भाई दया सिंह ने वेखिया कलगी वाला मट्टी ते बैठिया है। कहंदे, दाता आनंदपुर विच सा, तेरे थले 2.5 लाख की चौकी होती सी, 1.25 लाख की चांदनी होती सी। महाराज साडे कोलों वेखिया नहीं जाता, सानू भावें अपने तन के कपड़े उतार के तेरा आसन बनाना पवे, पर तेरा आसन असी बनावांगे जरूर। महाराज ने सिर ते हाथ रखिया, दया सिंह जी कोई गल नहीं, जिवें करतार नूं भावे। सिंघां ने घोड़े दीयां काठियां उतारियां, कपड़े कुछ इकट्ठे कीते, कलगी वाले का आसन बनाया, पुत्रा का आसन बनाया। ते अज गुरु का खालसा नितनेम जिहड़ा रात दा कीता रहरास सोहिला पढ़िया, ते अज गुरु का खालसा आराम करन वास्ते लेटदा है। 2 सिख महाराज कोल आए। उन्हां सिखां दा नाम सी भाई मदन सिंह, भाई कोठा सिंह। दोवें आए। महाराज नूं कहण लगे, सतगुरु सानू नींद कोई नहीं आउंदी पई, कृपा करो असी चमकोर दी गड़ी दा अज रात नूं पहरा असी देंगे। महाराज जी लेट गए, सिख लेट गए आराम करन वास्ते। वो भाई मदन सिंह ते कोठा सिंह पहरा देन लगे चमकोर दी गड़ी दा। कहंदे ने अद्धी रात जदों होई, कलगी वाला उठिया, उठ के एकदम चौंकड़ा मारिया, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, अबू तू ही, अक्षय तू ही, जलस तू ही, थलस तू ही, मकी तू ही, मका तू ही, अबू तू ही, अभय तू ही। बाबे ने जिस वेले सिमरन कीता, ते सिमरन करन तो बाद सतगुरु अचानक उठे ते बाहर आए। ते बाहर आके भाई मदन सिंह ते कोठा सिंह ने वेखिया, कलगी वालिया ऐदी रात नूं तू? महाराज ने कहा, लाल जी बहुता उच्ची ना बोलो, खालसा सो रहा है ते मैं तुहाडे कोलों एक सेवा मंगण आया वा। कलगी वालिया, असी ते तेरे दर दे टुकड़ हार हां, तेरे कुकर हां, असी तैनूं की दे सकने आ? साहिब कहण लगे, अज तुसी मेरे ते एक कृपा कर दिओ, तुसी आराम करो, अज खालसे दा पहरा गुरु गोबिंद सिंह देगा।
मैं कहना सतगुरु एडा प्यार अपने सिखा नाल कदे किसी ने नहीं किया होना जितना तू अपने सिखा नाल कीता है। भाई मदन सिंह ते कोठा सिंह नूं सुवा दिता, कलगी वाले ने अज जोड़े कटे, श्री साहिब लैके अज आप पहरा दे रहा है। कुछ समा पहरा दिता, महाराज अंदर आए। अंदर आके गुरु ने खालसे नूं वेखिया, जेड़े सुते सन कोदियां दस्तारां ढिलियां, महाराज ने दस्तार आप कसी खालसे दी। जिन्हां दे केस भुल गए सन, महाराज ने आप जूड़े बने। जेदियां चादरां उतर गईयां सन, गुरु ने आप चादरां दित्तियां ते महाराज जी ने वेखिया, उन्हां दे मत्थियां नूं चुमिया। कलगी वाले ने वेखिया, मेरे सिंगां दे हथ किरपाना चला चला के थक गए ने, छाले पै गए ने। गुरु ने उन्हां दे हत्थां नूं चुमिया। मैं कहना कलगी वालिया, तेरे तो बलहार जाइए। जिस वेले तू सिखां दे पैरां वल आया, गुरु ने अपने सिखां दे पैरां नूं भी अपने लबा नाल चुमिया। गुरमुखो फिर पता है आपां कवांगे लो जी ये किद्दां हो गया, पर कलगी वाले ने आप कहा, जे बाणी विच महाराज ने कहा, सेव करी इन्हीं की भावत और की सेव सुहात राजी को। बाबे ने जिस वेले अपने सिंगां दे चरण चुमे ने ना कलगी वाले ने, उस वेले कलगी वाला बोलिया, गुर सिक्खी भाड़ा मनिया, गुर पूरा पार लगाए, गुर सिखा की हर धूड़ दे, हम पापी भी गद पाए। सच्चे पातशाह महाराज ने सिखा दे चरणा नूं चुमिया। अल्लाह यार खा जोगी कहता है, कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, कई पहरा देने तलवार उठाकर, गोविंद भी सब बास हुए खेमे में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। वाहि गुरु है मुंह से निकलता, है तू ही मुंह से निकलता। जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे दिल था दुआ में, बोले खुदाबंद खुश हूं तेरी रजा में, मैं भी तेरा हूं मेरे बच्चे भी तेरे हैं मौला, जिस हाल में रखे वो हाल है अच्छा। खालसे तो बाद बाबे ने एकदम अपने पुत्रा नूं वेखिया। बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह ये दोवें पए होए सन। पता की बोलिया कलगी वाला, एकदम रोह विच आके कलगी वाले ने कहा, थे 4 हो अब 2 ही, कल ये भी ना होंगे, हम शुक्र करेंगे अगर ये भी ना होंगे। कहते मेरे 4 लेके आया सा आनंदपुर तो, 2 मेरे सरसा ने विछोड़ दिते ते अज 2 रह गए हो। बेटा सवेरे तुसी भी नहीं जे रहना, मैं तुहाडे वास्ते रब अगे अरदास करांगा। जिन सिंहों ने था कल मौत के साए उतरना, कल जिन खालसों ने था जंग में मरना, ते बाली के हुआ जब उधर से गुजरना, चूमा कभी हलकूम कभी दाहन चूमने बैठे, गुरु जी जब 35 आए सिंहों के चरण चूमने बैठे। महाराज ने सिंघां दे चरणा नूं चुमिया। सारी रात कलगी वाला सुता नहीं, अमृत वेला होया। महाराज ने आवाज दी, दया सिंह जी अमृत वेला हो गया, नितनेम शुरू करो। गुरु के पुत्रा नूं जगाया। खालसे ने उठ के जिस वेले नितनेम कीता, बाहरों अल्लाह बुलखैया आ गया। 10 लाख की फौज बाहर पूरा चमकौर साहिब घेर लिया ते अंदर भुखे 40 सिंह, पर मैं कहना 40 की चढ़दी कला आसमान नूं छूंदी पई सी। गुरु के सिंघों जिस वेले अमृत वेले का नितनेम कीता ते सूरज की टिक्की चढ़ी, उस वेले बाहरों लोगों ने की सोचा, जालमा ने के पौड़ी ला के पकड़ लेने आ, किन्ने को सिंह अंदर होणगे। सब तो पहला आया नाहर खां। सतगुरु ने जफरनामे विच ऐदा जिक्र किया है। जिस वेले नाहर खां आया, उन्हें पौड़ी ला के विख्या ते एकदम कलगी वाले ने अज तीर कटिया पत्ते चो
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਨਾਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ, तेरे ऊपर पहला तीर गुरु गोबिंद सिंह ने आप चलाया से। शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह ने आप तीर नाल कीती। दूजा बंदा आया पौड़ी लगा के वेखिया, उन्हें उहदा नाम सी गनी खां। सतगुरु ने बुरज मारिया उहदे सिर विच, उहदे सिर नूं पाड़ के रख दिता। तीजा आया ख्वाजा मरदूद। जिवें गुरु ने वेखिया वो एकदम बाहर नूं भज गया। महाराज ने जफरनामे में ऐसा जिक्र किया है। साहिब ने कहा औरंगजेब तेरा नाहर खां आया, मैं उन्होंने तीर बख्शिया। तेरा गनी खां आया, मैं उदा सिर तोड़िया। कहते ख्वाजा मरदूद आया, जरा जा मुंह दिखा के भज गया। जे मेरे सामने आ जाता एक तीर मैं उनकी छाती विच भी बख्श देना सी। गुरमुखो फिर उत्थे महाराज ने जिहड़ा शब्द किया ना, ओ सी चूकार अज हवा हीर ते दर गुजस्त हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। अव्वल ता खालसा किसे नूं कुछ कहता नहीं, ये रोज कहता है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। पर जिस वेले कोई खालसे नाल अड़ जे ते महापुरुष कहते सन अड़े सो झड़े शरण परे सो तरे। जिहड़ा खालसे दी शरण पै जाएगा वो तर जाएगा, जिहड़ा अड़ जाएगा वो झड़ जाएगा। खालसे अगे ना पहला कोई टिकया ते ना अज कोई टिकेगा। गुरमुखो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल भाई हिम्मत सिंह जी आए। उन्होंने कहा दाता जे बाहरों कट्ठा हमला उन्होंने किया, ये हमला तेरे ते मन्निया जाएगा। सतगुरु ये साडे वास्ते गुरुद्वारा बन गया चमकौर, क्योंकि जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे कलगी वालिया असी नहीं चाहते साडे रहंदियां कोई तेरे वल वेखे। महाराज जी जंग विच जाण दी आग्या। पहला जत्था भाई हिम्मत सिंह दा गया। जिवें अबार गए भाई दया सिंह ने बूहा खोलिया चमकौर दा। जिवें भाई हिम्मत सिंह बाहर गए ने ना, 5 सिंघां नूं लैके मैं कहना कलगी वालिया एक बंदे 10 लाख ते एक बंदे 6 सिंह। तू 1.25 लाख नाल जेड़ा लड़न दा गल कही सी ना, उन्हों तू अज सच करके दिखा दिता। एक सिख ते 1.25 लाख जालम आउंदा है तां भी सिख जयकारे गिराउंदे ने। ते जिस वेले दुश्मनां दे आहू लाए, दुश्मनां नाल जंग कीती, कईयां नूं कट्टिया कईयां नूं वड्डिया, विचों आवाज आई ये ओही प्यारा है जिहड़ा कलगी वाले ने आप बनाया सी। तीरां दी पुछाड़ होई, भाई हिम्मत सिंह ने शहादत दा जाम पीता। भाई साहिब सिंह गए, भाई मोहकम सिंह गए। 3 जत्थे जिस वेले चले गए तकरीबन 27 को सिंह जेड़े ने वो शहादत दा जाम पी गए ने। ते गुरमुखो हुण कलगी वाले महाराज आप तैयारी कसण लगे ने। एकदम बाबा अजीत सिंह ने आके गुरु के चरणों में मत्था टेकिया। भाई दया सिंह कोल सन। महाराज नूं बाबा जी कहण लगे, बाबा अजीत सिंह जी कहंदे सच्चे पातशाह आप कृपा करो ते मैं भी शहादत का जाम पीना चाहना वा। मैं कहना वा गड़ी कंबी होवेगी। 18 साल का पुत्र ते आप जंग विच जाना चाहता है। महाराज ने छाती नाल लगाया ते कहा बेटा मैं तेनू चमकौर वास्ते पालिया है। 6 दिते सिंह ते जिस वेले अगला जत्था बाबा अजीत सिंह दा भेजिया, गुरु ने शाबाश दी। महाराज पहुंची पे आ गए, छत पे आ गए उस गड़ी दी। ते दूजे बंदे बाबा अजीत सिंह दा जत्था गया। महाराज ने वेखिया मेरा पुत्र रण तत्ते विच जूझ रहा है। साहिब जी कहण लगे दया सिंह जी अज जंग का नजारा ही कुछ वखरा है। कुछ देर जंग की, उन्हां दा नेजा टुटिया, पत्ते विचों तीर मुके, तलवार कढ लई गुरु के उस पुत्र ने। जिस वेले तलवार वगाई किन्नियां दियां बावां ते धौना लाइया वो गुरु के पुत्र ने। ते जिस वेले तलवार टुट गई, बाबा अजीत सिंह के हाथ में कोई शस्त्र नहीं।
एकदम 12-15 तीर आके बाबे दी छातियां नूं विन गए ते कलगी वाले ने उस मुंगटी तो कहा, जिसकी बस सागे रख है, प्रभु की आज्ञा माने माते, उसते चौगुण करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। दूजे बन्ने बाबा अजीत सिंह की शहादत का जाम पी गए, कलगी वाले थले उतरे। भाई अजीत सिंह आप शहादत का जाम पीते ने, भाई दया सिंह जी कुछ नहीं बोलते, की बोलन? जिस प्यो के सामने 18 सालों का पुत्र टुकड़े टुकड़े हो गया ते की बोलन? गुरमुखो 395 फट लगे सन बाबा अजीत सिंह को, की छड्या होना है ते की मारिया होना है। 395 तीर ते तलवारां दे वार लगे सन बाबा अजीत सिंह की छाती विच, ते जिस वेले थले आए, थले आके मत्था टेकिया बाबा जुझार सिंह ने, ते शब्द कहे सर, भाई से बिछड़ के हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं, सोना नहीं, पीना नहीं आता, कृपा करो मैनू भी जंग में जान की आज्ञा दो। भाई दया सिंह जी सोच रहे सन, कलगी वालिया मैं अपने तन के टुकड़े करके उन्हां रावां ते बिछा दिया जिन्हां ते कलगी वालिया तू लगना है। तो साडे वास्ते ये कुछ करना पिया है। महाराज ने पता है की किया? कहते बेटा हमने ही कहा था बाप को जान दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं आज आपको जान दीजिए धर्म पर। मैं ही तोड़िया सी प्यो नूं भी, जिस वेले मैं बच्चा सा अपने प्यो नूं तोड़ दिता, जिस वेले मैं प्यो बनिया मैं पुत्रा नूं तोड़ना पिया। मैं कहते भागा वाला हाँ, बरड़ाई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद। जुझार सिंह तेरिया मावा होंदियां ते तेरे ब्याह वेले तेनू आप सजाउंदियां, अज तू मौत नूं ब्याण चलिया है, आ मैं तेनू सजावा। बरड़ाई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जाबाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आवाज से बोले गुरु गोबिंद, ले आओ तन पाक पे हथियार सजा दे, छोटी सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दे। मेरे पुत्रा तेरी उम्र छोटी है। जिस वेले महाराज ने दूजा पुत्र भेजिया, महाराज जी फिर मुक्ति ते गए। साहिब ने कहा दया सिंह मैं अपने तीरां दी छावां विच अपने पुत्र नूं भेजना चाहना वा। जिस वेले बाबा जुझार सिंह बाहर निकले, महाराज ने आवाज मारी, जुझार सिंह जी हुक्म पिताजी। महाराज ने कहा जिस वेले तेरी छाती विच तीर लगे, एक बार मुंह चमकोर बल कर लवी, मैं तेरी छाती विच लगया होया तीर वेखना चाहता हूं। बाबा जुझार सिंह जी जिस वेले गए, अपने वीर नालों भी अगे निकल गए, लाश पई सी उन्हां नालों भी अगे निकल गए। कलगीधर सतगुरु महाराज जी कह लगे, वेख दया सिंह अज जुझार सिंह ने अपने आप नूं आप पेश किया है। इस कौम के अंदर जुझार सिंघां की कमी नहीं रहेगी। जदों भी कौम नूं लोड़ पेगी, जवान बच्चे जुझार सिंह के रूप में कौम की खातर अपनी कुर्बानियां देने वास्ते अगे आउणगे। बाबा जुझार सिंह जिस वेले गए, कईयां नूं टुकिया, कईयां दे आहू लाए। जिस वेले उन्हां जंग कीती ते जिस वेले आप शहादत दा जाम पीता, ते एक बार मुड़ के उन्होंने चमकोर वल तकिया, अपनी विदाई दी। कलगी वाले सतगुरु ने वो चमकोर की गड़ी विचों ही जयकारा गजाया, बोले ऐस बन्ने सूरज की टिक्की छिपदी पई सी ते दूजे पासे बाबा जुझार सिंह दे प्राण निकलते पे सन। कलगी वाले सतगुरु जी थले आए। अज गुरु का खालसा कलगी वाले दे अगे नीवियां पाके खड़िया है। महाराज ने कहा जंग अज दी समाप्त है। मैं माण करना वा अपने पुत्रा तो, माण करना वा अपने खालसे तो, जिसने आप पूरा दिन जंग लड़ी। कल नूं सब तो पहला मैं जावांगा जंग विच। उन्हें कहा दाता तू ना जाई, जे तैनू कुछ हो गया
ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ प्यारे बना देगा, खालसा बढ़ जाएगा। कलगी वालिया आप नहीं जाना, महाराज ने कहा नहीं मैं जावांगा। साहिब जी कह लगे कोई ये कहेगा कि मैं खालसा मरवा दिता गुरु चलिया गया, कहते नहीं महाराज तुसी ना जाओ, गुरु ने जिद पकड़ी मैं जावांगा। अज फिर खालसे ने मता पकाया कि आ दाता जिहड़ा अधिकार तू दिता सी ना कि पंज प्यारे जो कहणगे मैं भी मन्नांगा, अज पंज प्यारे आप नूं कहंदे पए ने गोबिंद सिंह गड़ी नूं छड़ के चलिया जा। गुरु के उन्हां खालसियां ने मानो ये हुक्म दिता, कलगी वाला अज खालसे दा हुक्म बजा के जोड़ा लाया ते आप तुर पए। जिवें उन्हां लाशां विचों लंघे, गुरु के चरणा नूं किसे चोले ने अटकाया, थल्ले वेखिया बिजली कड़की, वो बाबा अजीत सिंह दी लाश। भाई दया सिंह कहण लगे दाता कबर कसा एक मेरे कोल है, एक तेरे कोल है, जुझार सिंह दी ढक देने आ ते अजीत सिंह दी लाश कफन नाल ढक देने आ। कलगी वाला बोलिया जे मेरा खालसा इंज पिया है ते मेरे पुत्रां दा कुछ नहीं बिगड़दा, दाता ये तेरे पुत्र ने। साहिब ने कहा दया सिंह जी मैं पुत्रां विच ते सिखां विच कदे फर्क नहीं जाणिया, मैं ते अपने पुत्र अपने खालसे तो वारना पिया वा। दाता जी तेरे तीरां नूं सोना क्यों लगिया हुंदा सी? महाराज ने कहा दुश्मनां दे पुत्रां दे संस्कार वास्ते, वो दुश्मनां दे पुत्रां दा संस्कार करन वालिया तेरे आप दे पुत्र बिना कफन तो पए ने। कलगी वाले ने कहा मट्टी है ते मट्टी नाल मोह की है। गुरु टुर गया, अपने पुत्रां दियां लाशां ते कफन नहीं पाए। मैं सोचना वा दाता ये वो कपड़ा होवेगा जेड़ा तू बचाया सी ना, पुत्रां ते नहीं पाया, ये वही कपड़ा है जेड़ा अज निशान साहिब ते झुलदा है। तो वो कपड़ा बचा के निशान सदा वास्ते झुला गया है। दूजे बन्ने खेड़ी विच गंगू ने किस तरह पकड़वाए गुरु के छोटे साहिबजादे, मात गुजरी मोरिंडे थाने विच रखे, जिस वेले ठंडे बुर्ज विच लियाए, किस तरह वजीर खां दे कोल 3 दिन तक पेशियां होंदियां रहियां। उन्हां पहला सोचिया कि झुक जाणगे, वड्डा गेट बंद किया, छोटी खिड़की खोली कि जिवें ये झुके अंदर आणगे आपां ताड़ियां मारांगे। गोबिंद सिंह दे पुत्र झुक गए ने, जिवें उन्होंने वड़ना किया ना वो खिड़की विचों बाबा फतेह सिंह वड़न लगे। बाबा जोरावर सिंह ने रोकिया, वीरिया वेख दुश्मन दी चाल आ, आपां सिर नहीं पहला लाउणा, पहला आपां जुत्ती दिखावांगे कि ए वजीर खां सानू छोटिया समझना है कि ये झुक जाणगे, असी अपनी जुत्ती दी तली तैनू दिखावांगे, तेरे अगे झुकना नहीं। बड़े यतन कीते झुकाण दे, पर वो किथे झुकण वाले ने, उन्हां दियां रगां विच गुरु गोबिंद सिंह दा खून सी। जिस वेले तीजी कचहरी लगी ते चिनण दा हुक्म दे दिता, उस वेले वो गुरु के साहिबजादे बोले वजीर खान सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से। उपदेश हमारा सुन लो जड़ा दिल के कान से, कहते हैं हम तुमको खुदा की जबान से, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव सरों पे उठा चले, सिक्खी की सल्तनत का पौधा लगा चले। कहते ने अज तेनू कह के चले वजीर खान कि तेरी कबर ते किसी ने पत्थर नहीं मारना, ते खालसे ने पहला निशान ही फतेहगढ़ साहिब दे विच गढ़ना है। और ये सच होया गुरमुखो, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जिस वेले कलगी वाले ने भेजिया ते सब तो पहला उन्हें काम ही किया सी कि वजीर खां दे 2 टुकड़े कीते सन, और पहला निशान ही उन्हां नीआं दे विच गढ़िया सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, माता गुजरी, 2 छोटे साहिबजादे ये भी शहादत का जाम पी गए। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब तू साडे कोल कुछ नहीं लुकाया,
सब कुछ साडी झोली विच पा दिता। मैं एक बेनती करांगा, अज प्रण करके जायो दाता, सानू कसम है उन्हां नीहां दी जिन्हां नीहां विच तू अपने पुत्र दिते। अज तो बाद घर विच कदे नशा नहीं वड़न देंगे, अज तो बाद घर विच कदे केसां दी बेल भी नहीं होण देंगे। मैं कहना सतगुरु, असी तेरे अजीत ते जुझार नहीं बन सकते, घट्टो घट आपां मुहांदरे ही उन्हां दे वर्गे बना लईए, आपां सरूप ही उन्हां वर्गे बना लईए ते ये साडे शहादत दे दिहाड़े मनाए हुए सफल होणगे। महाराज कृपा करन, सारिआं नूं सिੱਖੀ दी दात ते खालसा जी के बोल वाले बख्शिश करन। जिहड़ा किसानां दे मोर्चे लग रहे ने, आप जाओ, उन्हां दा हौसला होर वधेगा, क्योंकि ये जिहड़ी लड़ाई है ना, ये खाली किसान दी नहीं है, ये ते हुण इंसाफ दी लड़ाई है। ये हुक्मरानां दे खिलाफ खालसे दी जंग है। जिहड़ी चीज तुहानूं अज 50 रुपइयां दी मिल रही है, तुहानूं पता ही नहीं लगना कदों ने 500 दी तुहानूं मिलनी शुरू हो जानी है। और ये काम शुरू हो चुकिया है। किसानां कोल जाओ, उत्ते उन्हां दा हौसला वधाओ, लंगर आदि विच पाया रसद आदि दी सेवा करो, ताई साडे ये शहादत दिहाड़े मनाए सफल होणगे। होइयां फुल्लां बख्शो। कोटान कोट शुकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, आप रब वर्गियां प्यारियां संगतां दा, प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद जिहड़ा अथा माण बख्शिश कीता है। होइयां फुल्लां बख्शो जी। प्रेम सहित गुर फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाजे